Hello guys, welcome you all again in our next exercise, the third exercise of the chapter mathematical logic, and we see the question number first. If the set A is given as having elements 3, 5, 7, 9, 11 and 13, then determine the truth values of the following compound statements. First one, there exists x belongs to A. There exists x belongs to A such that x minus 8 is equals to 1. What we have to do? We have to write down the truth value of this compound statement. This is the quantified statement, actually an existential quantifier is used. So, given the statement P, there exists x belongs to A such that x minus 8 is equals to 1. एक चीज तो हमें कंफर्म करनी है, क्या? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, मतलब एक एलिमेंट तो ऐसा है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कोई तो एक एलिमेंट ऐसा होगा, कहाँ पे? ए सेट में। सेट ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ये जो एलिमेंट्स है ए के, इनमें से एक तो एलिमेंट ऐसा रहेगा जिससे 8 हम लेस कर देंगे, जिसमें से 8 लेस कर दिया तो 1 आएगा। अभी देखते हैं, ये सेट में 9 एक ऐसा एलिमेंट है, 9 माइनस 8 वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है सही में वो सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें से 8 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हमें मिलेगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू टी। बस इतनी सी बात है, खाली हमें ट्रूथ वैल्यूज उसके लिखने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सेकेंड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स is an even number, is an even number। देखिए x belongs to a, अभी for all है, for all इसका मतलब है a के सभी एलिमेंट्स के साथ अगर हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस x, इसका वैल्यू इवन नंबर आना चाहिए। देखते हैं भाई, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, 5 लेंगे तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30, इवन नंबर। 7 square 49 plus 7 56, again an even number। 9 square 81 plus 9 90, again an even number। 11 121 plus 11 132, again that is the even number। 13 169 plus 13, again it is an even number। So for each and every element of the set A, if we substitute that value of A in this expression x square plus x, that is an even number। So given the statement P as for all x belongs to A, x square plus x is an even number, and the truth value is, what is the truth value of this statement? Truth value is again true, again true। Now third example, there exists x belongs to A में ऐसा एक एलिमेंट आएगा such that x square is less than 0। अभी x square less than 0 means square is negative। We know that square of every real number is always positive। Here x square is less than 0 and there exists x belongs to A, that means some non-real number should exist here। If we see 3, 5, 7, 9, 11, 13 all are the real numbers, and we know that square of every real number is positive। Here we have given square of real number is negative, so no such element exists there in A। ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो रियल नंबर नहीं है, सभी के सभी रियल नंबर से, और हमें पता है रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है। सो गिवन द स्टेटमेंट P as there exists x belongs to A such that what? X square is less than 0, and therefore
the truth value is, what will be the truth value? Now here it is false. Truth value is false here. Fourth example, fourth one, for all x belongs to A, x is an even number. एक सेट में जो एलिमेंट्स है सभी के सभी एंट्रीज जो है वो इवन नंबर रहेगी. x इज इवन नंबर. अभी देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऑल आर द ऑड नंबर्स. सो वी कैन से गिवन द स्टेटमेंट P फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x is an even number. That means there is an even number for all means सभी के सभी even numbers है. अभी देखिए भाई 3 odd number है, 5 भी odd, 7 भी odd, all entries in the set A are odd numbers. So we can directly say the truth value is false. Truth value is false. Okay, so take a record of this. Also there are some examples again. There exists x belongs to A such that 3x plus 8 is greater than 14, and one more is there. You have to solve for homework. Write down. Now let us study the question number 2. Write the duals of the following. अभी कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, उसके डुअल्स हमें लिखने हैं. अभी डुअल करते समय हम क्या करते हैं, याद रखिएगा. डुअल जब करना है सो हमें और एंड दोनों इंटरचेंज करने हैं. उसके बाद टॉटोलॉजी आएगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो टॉटोलॉजी लिखना है, ट्रू आएगा तो फॉल्स लिखना है, और फॉल्स आएगा तो ट्रू लिखना है. ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है. जहाँ पे और है उसको एंड कर देना है, और जहाँ पे एंड है उसको और कर देना है. डुअल लिखते वक्त टॉटोलॉजी है तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन में चेंज करना है, कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो उसको टॉटोलॉजी में चेंज करना है. ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स करना है, फॉल्स आएगा तो उसको ट्रू करना है. इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं याद रखनी है हमें व्हाइल मेकिंग द डुअल्स ऑफ द स्टेटमेंट्स. अभी देखिए P join Q meet R. So let's consider this as yes, which is P or Q and R. Therefore its dual is S dash. It is P, instead of or we take and, Q or R. हो गया, सीधी सी बात है. उसको और को हमने एंड कर दिया, एंड को हमने और कर दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड वन, P and Q and R. P and Q and R. So again we write the answer. कैसे आएगा? गिवन, ये तो हमारा प्रोटोकॉल है, जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेने का है. P and Q and R. Therefore S dash is the dual that will be P or Q or R. That is dual. Dual is S dash, that is P or Q or R. Next one, P or Q, P join Q meet R. S. Third one, P or Q and R or S. So again we write the answer of this. Given the statement S, that is P or Q and or R or S. Therefore the dual is S dash, that is P and Q or R and S. That is the dual. Next one, C or fourth one, C means contradiction or P and Q or R. P and Q or R. That is the given statement. Here it involves the contradiction. So given the statement pattern, S is contradiction or P and Q or R.
So dual is, instead of contradiction what we have to replace? We have to replace tautology and P or Q and R. That is the dual. And last one we take, fifth one, negation of P or Q and R or tautology. T for tautology. Let's write the answer of this also. So given the statement pattern S, it is negation of P or Q and R or tautology, and therefore its dual is S dash, negation P will be as it is, instead of or we take and, Q instead of and we take or, and instead of tautology we take contradiction. That is the duals of the given statement. Some more examples are there, you can write those examples also. Next question, if we take question number 3. Question number 3, write the negations of the following. First case, write the negations. First case we take the negation. First, x plus 8 greater than 11 or y minus 6, y minus 3, sorry, y minus 3, it is equals to 6. What we have to do? We have to write the negation, and if we observe, given the compound statement, or we can say first of all, let P is the statement, x plus 8 greater than 11, Q is another statement, y minus 3 is equals to 6. We have already seen the negations of the compound statements, and it is actually there is word used or यूज किया हुआ है ना, यहाँ पे और यूज किया है, तो सीधी सीधी बात है ये डिसजंक्शन है. ये क्या है? डिसजंक्शन है. अभी दो स्टेटमेंट्स का डिसजंक्शन दिया है, मतलब ये P जॉइन Q हमें गिवन है, ये हमारा गिवन स्टेटमेंट से इसका निगेशन लिखना है, मतलब निगेशन ऑफ P और Q, and we know that that is negation P and negation Q, and therefore the negation is, how we write the negation? Therefore the negation is, देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है, खाली हमें समझना है ये P और Q, और उसका निगेशन हमें फाइंड आउट करना है. सो निगेशन ऑफ P और Q, दैट इज, इट इज conjunction of negations of P and Q. So negation of P, yes, it is x plus 8 is not greater than 11, and yes, y minus 3 is not equals to 6 as per our डी मॉर्गन्स लॉ. हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिया है इससे पहले ही. निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ये डिसजंक्शन था, सीधी सीधी बात है, P और Q. सो डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दैट इज निगेशन P एंड निगेशन Q. सीधे सीधे हमने लिख दिया उसको निगेशन के फॉर्म में. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें यही बात याद रखनी है, हमारे निगेशंस लिखते वक्त डी मॉर्गन्स लॉ का यूज हमें करना है. सेकेंड एग्जाम्पल वी टेक. सेकेंड, 11 लेस देन 15 एंड 25 greater than 20. 11 less than 15 and 25 greater than 20. Again we write the answer. Let here also P statement, what will be P? 11 less than 15, and Q statements, that is 25 greater than 20, and therefore the negation is. अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन. P एंड मीन्स एंड Q. सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था, क्या था? निगेशन इज, यस इट इज 11 डज नॉट लेस देन 15 और
25 is not greater than 20. That is the negation of second statement. Second one, third one. Third one, root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. How we write the negation of this also? It is only statement P. So, let P is the statement, root 2 is a rational number. So, the negation will be, कैसे लिखेंगे? root 2 is not a rational number. Not a rational number. Root 2 is not a rational number. Some more examples we have to take. First of all, you have to take the record of this in your notebooks. Now we take the next example of negation. What is the example given to you? A quadrilateral is a square. Fourth one. Fourth example. Quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. It is a rhombus. अभी देखिए, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. हमने negation of biconditionality देखा था. If and only if यूज किया है तो हमें याद रखना है, हमने negation of biconditionality देखा था. क्या था negation of biconditionality? P double implication Q. negation of biconditionality क्या था, याद करो जरा, हमने देखा था. Yes, it is P and negation Q और Q and negation P. So सबसे पहली बात है, हमें P और Q दोनों स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. चलो देखते हैं हम. लेट P quadrilateral is a square. Quadrilateral is a square. And what is the Q statement? Q, it is quadrilateral is rhombus. हमने P और Q दोनों स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए. P और Q दोनों स्टेटमेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए. So quadrilateral is a square, that is the P statement, and quadrilateral is a rhombus. ये जो है ये Q स्टेटमेंट है. So हमारा डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या है, बहुत याद से, बहुत ध्यान से देखना है. P and negation Q. P and negation Q. Therefore the negation is, बहुत याद से लिखना है भाई. देखिए, negation is, अभी P मतलब quadrilateral is a square. Quadrilateral is a square. ये हो गया P. And so, but not Q, but not rhombus. A quadrilateral is a square but not rhombus. अभी हमें पता था but not 8, but 8 ये जो है ये and के लिए है. So हमारा कंजंक्शन होता है but भी. So quadrilateral is a square but not rhombus, or quadrilateral is rhombus but not square. देखा, but not square. negation of P कर दिया. देखिए, quadrilateral is a square P and so but not rhombus, negation Q. और ये आ गया, और Q क्या है, quadrilateral is a rhombus but not P, so but not square. That is the negation of this statement. So हमें याद रखना है, जब हम निगेशन करेंगे तो हमें ये 5 टाइप्स के कंपाउंड स्टेटमेंट्स के निगेशन पता हो. P और Q हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो ये पता होने के बाद हम इजीली हमारा स्टेटमेंट पैटर्न वहाँ पे लिख सकते हैं उसको निगेशन करके.
ठीक है। सो सबसे पहली बात है निगेशन लिखते वक्त हमें वो 5 टाइप्स के कनेक्टिव्स के निगेशंस भी पता हो। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल उसका। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। अभी देखिए कोल्ड एंड रेनिंग, कोल्ड एंड रेनिंग, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। देखिए 5th वन, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। अभी बहुत ठंडा भी है भाई और बारिश भी हो रही है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पी स्टेटमेंट कैसे आएगा भाई, लेट पी क्या आएगा, यस इट इज कोल्ड। एंड व्हाट अबाउट क्यू, क्यू आएगा इट इज रेनिंग, बराबर है। पी और क्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एंड मतलब कंजंक्शन यूज किया है, सो निगेशन ऑफ कंजंक्शन लिखना है हमें। निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज डिसजंक्शन ऑफ निगेशन, सो इसको भी कोल्ड कर देना है। दैट मीन्स इट इज, यस इट इज नॉट कोल्ड, और बिकॉज निगेशन ऑफ कंजंक्शन पता है हमें, निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज इट इज डिसजंक्शन ऑफ निगेशंस, सही बात है। सो डिसजंक्शन ऑफ निगेशंस, सो इसका निगेशन इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग, नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, हो गया निगेशन। सो हमने कंजंक्शन का निगेशन यहाँ पे कर दिया। निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज डिसजंक्शन ऑफ निगेशंस। उसके बाद 6th वन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखिए 6th एग्जाम्पल, अभी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 is divisible by 4, is divisible by 4। अभी देखिए भाई ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। जब भी हमें क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन करने का वक्त आता है, निगेशन करते वक्त फॉर ऑल आएगा तो हम देयर एग्जिस्ट लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट आ गया तो फॉर सम लिखेंगे, फॉर ऑल लिखेंगे। सो दोनों एक दूसरे के निगेटिव्स करेंगे, लेकिन उसको स्टेटमेंट भी हमें निगेटिव करना है। उसका सिंबल रिवर्स करने के बाद वो स्टेटमेंट को भी हमने क्या करना है, हमने निगेटिव करना है। ये बात याद रखिए। जब हमें द निगेशन इज, डायरेक्टली हम लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, द निगेशन इज फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट, मतलब फॉर सम n बिलोंग्स टू n। हाँ, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज, इसको भी निगेटिव करना है, नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। याद रहेगा क्या किया हमने, फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट लिख दिया। अभी ये जो है ये स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 4 था तो नॉट डिविजिबल कर दिया। फॉर सम n बिलोंग्स टू n देयर इज सम नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4 व्हेन सब्स्टिट्यूटेड टू दिस क्वांटिटी। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 में डाल दिया वो नेचुरल नंबर, तो वो डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये उसका निगेशन हो गया। फॉर ऑल था उसको देयर एग्जिस्ट कर दिया और यहाँ पे निगेटिव कर दिया, सीधी सीधी बात है। एंड वन मोर वी टेक विथ क्वांटिफायर, दैट इज देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट क्या है, x माइनस 17 इज लेस देन 20। देखिए भाई ये भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ही है, उसका भी निगेशन लिखना है। सो द निगेशन इज कैसे आएगा, देखिए मैंने बोला था देयर एग्जिस्ट आएगा तो क्या करना है, फॉर ऑल कर देना है उसको। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यहाँ तक तो आ गए। अभी इसको भी निगेटिव करना है, इसको निगेटिव करना है मतलब क्या आएगा, आइदर x माइनस 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ऐसे लिखो, या तो फिर कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n x माइनस 17 इज नॉट लेस देन 20 लिखो। दोनों में से कैसा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये हो गया निगेशंस ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। 4-5 चीज़ें हमें याद रखनी है। निगेशन, फर्स्ट वन इज निगेशन ऑफ कंजंक्शन, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। हाउ वी हैव सीन निगेशन ऑफ कंजंक्शन, that is negation of conjunction, that is disjunction of negations, negation P or negation Q. Second one, negation of disjunction, that is negation P meet मतलब and negation Q.
थर्ड वन, negation, that is the statement itself, means negation of true it is false, negation of false it is true. ये भी हमें याद रखना है. फोर्थ वन, negation of conditional statement, that is P and negation Q. And fifth one, negation of biconditional statement, so it is P and negation Q or Q and negation P. ये 5 चीज़ें हमें याद रखनी है, ये 5 चीज़ें हमें याद रखनी है, बिकॉज ये निगेशंस अगर हमें नहीं पता हो, क्योंकि जब हमें निगेशन लिखने का वक्त आता है, अभी ये एग्जांपल आप ऑब्जर्व कीजिए, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस. 1 मार्क की बात है, लेकिन फिर भी हमें P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा हमारे माइंड में सोचना भी है, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए लिखना भी कितना है हमें, ये भी तो हमें मैनेज करना पड़ेगा ना. सो टाइम का मैनेजमेंट के लिए उसको हमें बहुत ठीक से याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में वी नो दैट ये ऐसा होता है, फिर ये लिखो, फिर उसको ऐसा करने में टाइम ज़्यादा जाएगा. 1 मार्क की बात है तो हमें हमारे दिमाग में उसको फिट रखना है, दिमाग में हमें याद से उसको रिमेंबर करके रखना है कि जब हमें बाय कंडीशनल का निगेशन लिखने का वक्त आता है, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P होता है, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं उसको बगैर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हुए. लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्ट का ये 5 पॉइंट्स बहुत ठीक से याद करने पड़ेंगे. अभी इतना जो है आप आपके नोटबुक में नोट्स कर लीजिए, नोट्स की आपको ज़रूरत आएगी. चलिए भाई, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम अभी पढ़ेंगे. राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ. फर्स्ट एग्जांपल, इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर. हमें कंसेप्ट उसकी याद रखनी है. कॉन्वर्स कैसा आएगा? कॉन्वर्स निगेशन P, सॉरी कॉन्वर्स कैसा आता है? Q इम्प्लाइज P आता है. व्हाट अबाउट इनवर्स? इनवर्स इज निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q. एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या आता है? निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P. ये तो हमारी कंसेप्ट है, ये हमारी कंसेप्ट है. P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स आएगा Q इम्प्लाइज P, उसका इनवर्स आएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, एंड उसका कॉन्ट्रापोजिटिव आएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P. अभी ये चीज़ें हो गई तो हमें सबसे पहली बात है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ज़रूरी है. सो हम P एंड Q आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. लेट, और यू कैन से गिवन द स्टेटमेंट, गिवन P इम्प्लाइज Q, दैट इज इफ x लेस देन y. ये देख रहे हैं ना आप, इफ देन दिया हुआ है, सो x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर. देयरफॉर फर्स्ट converse, it is Q implies P. What will be the converse then? If yes, x square less than y square, then x less than y. क्या किया हमने? इसको P स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, सॉरी इसको P स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, इसको Q स्टेटमेंट. If P then Q, सो ये P है और ये Q स्टेटमेंट है. सो P implies Q हमारा गिवन है, बिकॉज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव जो है वो exist only for conditional statement. So it is P implies Q. So converse is Q implies P. So if Q, then P. Now second one, inverse. Inverse. It is negation P implies negation of Q. So how we write? If x is not less than y, then x square is also not less than y square. हो गया, दोनों निगेटिव कर दिए. एंड थर्ड वन, कंट्रापोजिटिव. व्हाट इज कंट्रापोजिटिव देन? इट इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P. सो इफ x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर, देन x इज नॉट लेस देन y. ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया, उसको ठीक से हमने क्लियर कर दिया. अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, सेकेंड वन. इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, if surface area decreases then pressure increases. देखिए, then pressure
increases. Surface area decreases, that is the statement P. Pressure increases, that is the statement Q. So what is the given by given conditional statement? Given P implies Q, that is if surface area decreases, then pressure increases. Okay, that is the given statement to you. So first, converse. How we write the converse? That is Q implies P. So if that pressure increases, Q है ना, if pressure increases, then surface area decreases. कॉन्वर्स कर दिया भाई. If P then Q, if P then Q, that is the converse. Second one, inverse. Negation P implies negation Q. How we write? If surface area decreases है ना, so इसका negation करना है. If surface area decreases की जगह पे क्या आएगा? Yes, it is increases, then pressure increase की जगह पे क्या आएगा? Decreases, because negative करना है ना. So not decreases means increases and not increases means decreases. And third one, contrapositive. Yes, contrapositive. It is negation Q implies negation of P. So how we write? If negation of Q, what is Q? Pressure increases, उसका negation. So pressure, if pressure decreases, then Q, negation Q, then ये negation Q हो गया. If negation Q means if pressure decreases, then negation P, surface area, negation करना है. decreases का मतलब यहाँ पे आएगा क्या आएगा? increases. Okay. So this is the concept of converse, inverse and contrapositive. That is all from the exercise 3rd of mathematical logic. Some more examples are two examples are there also. You can solve at home. So this is the exercise number 3rd from chapter logic. We will be continuing with the next topic in the next lecture. Thank you very much. I request you all again to like, share and subscribe my YouTube channel. Give your friends also. So because in this period of lockdown, you have to learn something from home, and according to the all directions from the government, we are just trying to give you the knowledge at home. So I request you all to forward the link of this video to your friends also. Like, share and subscribe my channel. Thank you very much. We will see next topic in our next lecture. Thank you.